Okay, so hello my dear friends, guys, myself Darpan Srivastava and this is our 18th century book class, okay. So finally I have completed my notes and this notes one are very much important because this notes is very easy. First of all, each concept we will clear like a scientific method, okay. Because when we include science in any subject, then it makes more easy, okay, and it seems like, oh my god, what easy it is, okay. So very easy formula, okay. Now first of all we will read about the overview, okay, just for getting a knowledge, yeah, about the author, about the chapter, what exactly present in the unit, okay. So first of all we have total 3 units. Number 1 is the Rape of the Lock, written by Alexander Pope. Number 2 is Gulliver's Travel, written by Jonathan Swift. Number 3 is, last but not the least, is lesson The Vicar of the Wakefield, written by Oliver Goldsmith, okay. So without wasting our much of time, directly let's begin to our video and let's learn new things in a very new style scientific method, okay. So number 1 is Alexander Pope. First we will complete this whole lesson, then we will go into another forward, okay. So the Rape of the Lock, Alexander Pope. First of all, there has no any this type of content. What is the chapter name, okay. Yeah, so number 1, about the author, okay. Alexander Pope, 1688 to 1744, was one of the most important poets of the 18th century. He is best known for his satirical poetry and for perfecting the use of the heroic couplet, okay. Perfection in the heroic couplet. Pope suffered from health problems, okay, but he had a sharp and intelligent mind, okay. His brain set too much intelligent, alright. His major works include The Rape of the Lock, The Dunciad, and an essay on criticism, which was so crucial that time, okay. So here we are talking about the rising of the novel of 18th century, okay. So we will talk background also, historical background, okay. That's all. Now, he was deeply involved in criticizing the corruption and vanity and foolishness of society, okay. Means he didn't like these all, like corruption, people's corrupting society, okay. Vanity and foolishness of society, okay. Public society members, committee, they don't like it. This poem is like a case study of human behaviors, okay. This poem is totally like a case study. Our feelings, our mindset, each and everything, okay. That how we are feeling, how we are reacting on the situation. This poem highlights it, okay. A type of a human behavior, we can say. A small event, cutting a girl's hair, okay, is treated as a large reaction, just like a chemical reaction, okay, where a small input cause a big output, okay. The poet used tools like rhyme, couplets, and supernatural beings called salves to show that people overreact to silly things. It's an experiment, an ego and pride in rich people, okay. It proves that emotions can exaggerate reality, just like a microscope zooms into something very small, okay. Conclusion is this: small social actions can create large emotional reactions. Just like that, this poem shows the instability of human ego, like an unstable molecule reacting, okay. We can say, according to chemistry, unstable molecule reacting, okay. Just like our human behavior is also unstable. Human ego, our attitude is unstable, okay. A small action, hair cutting,
triggers a huge social explosion, just like that sodium plus water is equals to explosion. If we mix sodium plus water, okay, sodium plus water H2O, then it creates explosion, just like boom. Okay. Similarly, ego plus insult is equals to drama, and this is the formula, this is the theme of this whole lesson. Ego plus insult is equals to drama means sodium plus water is equals to explosion. Human chemistry, we can say. The poet uses balanced couplets, just like a scientist balance equations. Just like a chain reaction in chemistry, small events in society like cutting a hair, okay, cutting a tooth, we can say here, okay, not in Hindi, alright, use, can cause dramatical emotional responses in people with inflated egos. That's all about it, okay. Now, as I have said that we will also read about the background of the 18th century, the rising of the novel, okay. So, the 18th century was a period of great change in England, socially, politically and culturally. It is also called the Age of Enlightenment or the Augustan Age in literature, okay. First of all, here we are talking about enlightenment. This is not the enlightenment time of Buddhism, okay. For those students who like arts, okay, who like to know more about history, okay, like Jainism, Buddhism, who they have idea that time in the Buddhism time there is also an enlightenment, okay, a topic. So we are not talking about those enlightenment. We are talking about Augustan age in literature, this type of enlightenment, okay. Historical context. England was becoming more modern, cities grew, trade expanded and the middle class increased. Scientific thinking, logic and reason were celebrated over religious beliefs and blind traditions. The Industrial Revolution began towards the end of the century. Printing technology improved, like printing press as we have talked about, okay. More books, newspapers and magazines become available, okay. Available, slowly available, alright. Now, how did the novel rise? This is the biggest question asked in every exam, that how did the novel rise, okay. We can say it's historical also, we should have a knowledge about it, okay, we should know. Now, growing middle class. Increase the level of middle class. I'm not talking about level, I'm talking about improvement, okay. Increase the improvement of middle class, growing of middle class, alright. Middle class people wanted stories that reflected their own lives, not just kings or gods. They looked for realistic characters, emotions and social struggles. Means middle class people liked realistic things, okay, realistic, not artificial, alright. Like that time filters are available or something like artificial, nothing is realistic, but that time people loved realistic, they wanted realistic things, they wanted natural, okay, natural beauty of actors, realistic things, alright. And saw social struggles that time, alright, they liked it, the real life. Now, printing press and literacy. Books became the, we can say, okay, books become more widely available that time. More people, especially women, started reading, okay. Daily life and realism we have. Novels were down to earth, focusing on daily life like social problems, alright. Marriage, money, morality and the reality of life, what we can say, realism, okay. What exactly realistic going on in society, what exactly happening currently.
they know their social status. Okay, they wanted to know social status. All right, what is currently happening in our society and social manners, morality. That's all about it. So that's how the rising of the novel completed. Alexander Pope also completed. Now it's time to read Jonathan Swift. Second number our unit, which is Gulliver's Travels. So let's learn about the author. First of all, book is equals to social psychological. Okay, this full book become on this full book we can say depend on our psychological thinking. Okay, social psychology we can say. Gulliver is equals to test subject. Okay, Gulliver is like observer plus reactor we can say. Each land is equals to controlled environment. Okay, like 4 petri dishes with different bacterial culture we can say. Okay, Lilliput means first of all, did you understand what I have spoken currently? Bacterial culture and 4 petri dishes means every land, each and every land has their own point of view. Okay, has their own we can say culture, own style of living, own method of thinking. Okay, all 4 lands are different to each other. Okay, they all are differ. All right. Now number 1 is Lilliput. Okay, the name of the land is Lilliput. Small bodies, big egos. कहते हैं ना छोटा पैर बड़ा धमाका, just like this. Small bodies. Okay, the people are very small. I haven't any idea this or this, but they have small bodies. Okay, they have small bodies but big egos. Their ego, their attitude very big. Leaders are teeny in size but have huge pride. Okay, pride से याद आया नंबर 1 फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर फर्स्ट नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडाइस. वहाँ एलिजाबेथ और मिस्टर दासी की बात हो रही थी. राइट, सो ये वही वाला प्राइड है ये भी. ओके, सो they fight over petty issues like how to break an egg. Just like that, small size is not is equal to small impact. Okay, scientifically proved reason है ये for human being also that small size is not is equal to small impact. Even an atom can cause a nuclear reaction. Okay, so this is scientific proof that fix it in your mind that small size never be equal to small impact. Even an atom can cause a nuclear reaction. Okay, it can cause. So always mind it. Okay, never judge a book by its cover because a book can give you success we can say. All right, now low mass plus high mass is equals to unstable reaction. The whole size is the same. Okay, low size but high attack. As I have said that whole concept is very easy. Okay, Lilliput shows in short, Lilliput shows that how teeny power, okay, how teeny power structures can create explosive. Okay, like an atomic model full of unstable particles. Okay, that's all about it. ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना. ओके, आई होप कि साइंस की लैंग्वेज में अच्छा समझ में आ रहा होगा आपको कि एक एटम भी न्यूक्लियर रिएक्शन कर सकता है. ओके, एक सिंगल एटम भी. ऑलराइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल, आई एम टॉकिंग अबाउट एटम. ओके, इफ यू डोंट नो व्हाट इज एटम देन गो इन टॉपर्स फ्री क्लास एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न. वहाँ जाकर ये सीखो कि एटम है क्या. ओके, माई वीडियो इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर. Atom and molecule. Okay, structure of atom and molecule. Class 9 chapter number 3rd and 4th. Go and check. Learn first. Okay, but if you are science student then it's all right. Now number 2 is Brobdingnag. Okay, Brobdingnag.
नाम में बड़ा कंफ्यूजन है. ब्रॉब डिंग गो ओनैग, वी कैन से ब्रॉब डिंग ओनैग, सिंपल. ब्रॉब डिंग ओनैग, ब्रॉब डिंग ओनैग, याद हो गया. वेरी गुड. बिग बॉडीज, बॉडीज बिग, मुझसे भी बड़े. ओके, मेरे डबल. बॉडीज बिग, काम थिंकिंग. मीन्स ये लिलीपुट का ना बिल्कुल अपोजिट है. लिलीपुट में छोटा पैक बड़ा धमाका, यहाँ है बड़ा पैक लेकिन धमाका बहुत छोटा. धमाका है ही नहीं एक तरह से. ओके, काम थिंकिंग है ना, सो एक्सप्लोजन कहाँ से होगा. Giants are large in size but think slowly and morally. Logical thinking है उनकी. ओके, they value ethics over politics. पॉलिटिक्स से ज़्यादा एथिक्स एंड डिसिप्लिन को वो वैल्यू देते हैं. ओके, विच इज़ वेरी गुड. ऐसी काम थिंकिंग तो हमारे में भी होनी चाहिए. ओके, जो कि नहीं है, मेरे में भी नहीं है. देयर सोसाइटी, मेरे में मिक्स है. ओके, देयर सोसाइटी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम. ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम वी कैन से. ओके, एनीथिंग इज बैलेंस्ड, वी कैन से एवरीथिंग इज बैलेंस. ओके, उनकी सोसाइटी कैसी है, वहाँ पर सब कुछ बैलेंस्ड है. ओके, इग्नोर माई BGM, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड. ऑलराइट, बिकॉज माई BGM आई गेस. सो स्टेबल कंपाउंड विद लो रिएक्टिविटी. ओके, डज नॉट रिएक्ट क्विकली टू स्मॉल डिस्टर्बेंसेस लाइक हाई इमोशनल इंटेलिजेंस is equals to more empathy and less reactionary. Okay, जिन बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट होगा साइकोलॉजी, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो इजीली समझ पाएंगे ये क्या मैंने अभी कहा. ओके, मेरा तो सेकंड सेमेस्टर में है बाय द वे. आप में जिसका होगा कमेंट कर देना, हेल्प हो जाएगी मेरी भी. ओके, नाउ लापता, दैट्स ऑल अबाउट ब्रॉब डिंग ओनैग. ओके, नाउ नंबर 3 इज लापता. माइंड विदाउट ग्राउंडिंग. वाओ, माइंड है बट कोई ग्राउंड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई लेवल नहीं है. ओके, हवा में उड़ रहा है दिमाग. अ फ्लोटिंग इजलैंड ऑफ साइंटिस्ट एंड थिंकर्स हु नो एवरीथिंग बट अप्लाई नथिंग. ओके, हम जानते हैं सब कुछ लेकिन अप्लाई नहीं करते कुछ भी. देखो, हमारे पास सारा ज्ञान है, सारा नॉलेज है मेरे पास, लेकिन मेरा जो माइंड है ना वो ऐसे फ्लो हो रहा है, फ्लाई कर रहा है. ओके, जस्ट लाइक दिस, वो अप्लाई नहीं कर रहा. सारी नॉलेज आ चुकी है मेरे माइंड में लेकिन वो अप्लाई नहीं कर रहा. ओके, लाइक अ मैग्नेट लेविटेटिंग इन द एयर. लेविटेटिंग मीन्स वही फ्लाई करना. ओके, मैग्नेट है जो कि फ्लाई कर रहा है एयर में. कूल. और ये मत पूछना मैग्नेट एयर में फ्लाई कैसे कर सकता है. ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल. अगर ये भी जानना है तो मैग्नेटिक फोर्स पढ़ लो, क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9 या 10 में. ओके, 9-10 फिजिक्स का पार्ट है. वुमेन रीड इट, आई एम टीचिंग हियर नाउ. बट प्रैक्टिकली यूजफुल. देखो, लाइक अ मैग्नेट लेविटेटिंग इन द एयर, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना, सो इट इज यूजफुल. ओके, वो यूजफुल है. इन लापता गुलिवर्स ट्रेवल, द इसलैंड इज लेविटेटिंग इन द स्काई. ओके, वाओ, मुझे लगा वहाँ सिर्फ माइंड की बात हो रही है बट वहाँ का तो पूरा इसलैंड ही लेविटेट हो रहा है, मीन्स फ्लो हो रहा है. ओके, जस्ट लाइक फ्लाइंग इन द स्काई यूजिंग मैग्नेटिक फोर्स. किसके फॉर्म में, मैग्नेटिक फोर्स का यूज करके वो फ्लाई हो रहा है. ओके, स्काई में क्या फ्लाई हो रहा है, इसलैंड आइलैंड. ओके, ऑलराइट, नाउ करेक्ट द फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउंसिएशन. It is supposed to be island in Laputa, not in Laputa. Island का ही नाम लापुता है. Okay, the S is supposed to be silent. Just like a magnet levitating over another magnet due to magnetic repulsion. Okay, of course, magnetic का जब repulsion होता है, so magnet अलग होते हैं. North pole, South pole. You know very well attraction of magnetic force, repulsion of magnetic force. Okay, class 11th में भी है वैसे ये lesson. 11th I guess in 12th. Okay, now levitating in air without any touch or support. Of course levitating तो ऐसे ही होता है ना,
विदाउट एनी टच, बिना किसी सपोर्ट के। ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है वहाँ पर, कहाँ है था उस टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके नहीं था वहाँ पर, ओके। नाउ फोर्थ नंबर इज, इसकी तो प्रोनाउंसिएशन और भी ज़्यादा अच्छी है, मानना पड़ेगा। हाउ ही हन हन मग, हाउ ही हन मस, ओके। हाउ ही हन मस, ओके। ये है इसकी प्रोनाउंसिएशन। मैं यही कहूँगी इसे प्रोनाउंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। डायरेक्टली स्पेलिंग लर्न करके एग्जाम में लिख कर आ जाएंगे, ओके। प्रोनाउंसिएशन इम्पॉसिबल लग रही है मुझे। वर्ड इज याहूस, याहूस से याद आएगा हान हिन हन मस, ओके। लॉजिक वर्सेस इमोशन, याहूस इज इक्वल्स टू इमोशन, और ये जो हा ही हन मस है वो लॉजिक है, ओके। लग रहा है ऐसे कोई तांत्रिक का मंत्र हो। हा हिन हन मस आर स्मार्ट लॉजिकल हॉर्सेज, अच्छा ये घोड़ों का नाम, मतलब ये हॉर्सेज है, ओके, जो कि स्मार्ट है, लॉजिकल है। दे थिंक कामली, कामली सोचते हैं, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। याहूस, याहूस कौन है? याहूस वाइल्ड एनिमल है, ओके, जानवर है। याहूस आर वाइल्ड इमोशनल एनिमल्स, ओके, बहुत ही इमोशनल एनिमल्स, इमोशनल भी होते हैं, होंगे, इमोशनल एनिमल्स है, ओके। दे बिहेव बैडली, बैडली बिहेव करते हैं, इमोशनल भी है लेकिन बिहेवियर उनका बैडली है, वाओ, मीन्स एंग्री वुमेन, मैन नहीं, एनिमल है। याहूस आर लाइक डस्ट पार्टिकल्स इन सनलाइट, वाओ, पहले इनकी इतनी तारीफ की, वाइल्ड एनिमल्स, इमोशन, बैडली बिहेवियर। अब कहा जा रहा है कि ये एक पार्टिकल्स को कहते हैं ना, 10 पार्टिकल्स जो कि सनलाइट में है, मीन्स गुड पार्टिकल्स भी तो कह सकते हैं, या वेस्ट पार्टिकल्स, बताओ 10 पार्टिकल्स पे कह रहे हैं। सो सनलाइट में जो 10 पार्टिकल्स है ना वो याहूस है, ओके, वी कैन से। दे कीप मूविंग विदाउट कंट्रोल, चलो ये अच्छा है भाई, फ्रीली मूव है, ओके, दे आर फ्री टू मूव विदाउट एनी कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं है, मीन्स गैसियस के फॉर्म में है, ओके, जस्ट लाइक गैस। हाउ ही हन मस आर लाइक अ रोबोट, वो एक रोबोट के फॉर्म में है, ओके, जस्ट लाइक अ रोबोट। आई एम टॉकिंग अबाउट हॉर्सेज, जो लॉजिक है, ओके, ये तांत्रिक का जो मंत्र है। कार दैट फॉलोज इन इट्स पाथ विद लॉजिक, ओके, ओके, इट्स लाइक अ रोबोट कार दैट फॉलो इट्स पाथ विद लॉजिक, जो अपने पाथ को फॉलो कर रहा है लॉजिक के फॉर्म में, ओके, एक रोबोटिक कार है वो। मीन्स जो हॉर्सेज है वो अपने रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, ओके, उनका एक रास्ता फिक्स है, दिया उन्हें इसी वे में जाना है, दैट्स हाउ दे आर गोइंग। हाउ ही हन मस लाइक नॉवल गैसेज, ओके, वी कैन से ये एक तरह का नॉवल गैसेज है, ओके, लाइक हीलियम। वैसे हीलियम गैस कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एक जीके क्वेश्चन है, ओके। जो हीलियम गैस जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो किसमें होता है? हैप्पी बर्थडे में जो बैलून्स हम लगाते हैं ना, उसमें से जो गैस निकलता है वो हीलियम ही होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम ये सब नहीं होता, वो हीलियम गैस ही होता है, ओके। नाउ नियॉन स्टेबल पीसफुली है ये। दे यूज देयर लेफ्ट ब्रेन, सॉरी ये तुम्हें राइट है, वो अपने लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं, ओके। दे सॉल्व प्रॉब्लम्स विद लॉजिकली, क्या आवाज आई, वो लॉजिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ओके, क्या बात है, लेफ्ट ब्रेन लेफ्ट हैंड, वाओ, यूं 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 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लॉजिकली, ओके। नाउ याहूस की अगर बात की जाए तो याहूस लाइक फ्री रेडिकल्स, रेडिकल्स नहीं होगा, वेरी रिएक्टिव एंड डेंजरस, रेडिकल्स वेरी रिएक्टिव और डेंजरस तो होते हैं, ओके। दे यूज ओनली इमोशन, इमोशन को बस यूज करते हैं। दे गेट एंग्री, ग्रीडी एंड वाइल्ड वेरी मच, ओके, ऑलराइट। ओलिवर गोल्डस्मिथ, ओके, यानी कि अभी तक जो मैं समझ रही थी कि एक हॉर्सेज है, हाउ ही हन मस ये हॉर्स है, एंड याहूस जिसे वाइल्ड एनिमल कहा गया है, सो एग्जैक्टली में वो वाइल्ड एनिमल जैसा बिहेव करते हैं, मतलब ह्यूमन की ही बात हो रही है यहाँ, इंसानों की ही बात हो रही है। एक इंसान घोड़े जैसा है तो दूसरा जानवर जैसा, ओके, वाइल्ड एनिमल जैसा, वाओ। नाउ नंबर थर्ड इज, दिस इज नाउ ओवर थिंकिंग हो गई। नंबर 3 है द वाइकर ऑफ द वेक फील्ड। इस फुल बुक का सबसे बकवास लेसन यही है, ओलिवर गोल्डस्मिथ अबाउट द ऑथर। फर्स्ट ऑफ ऑल
अबाउट द ऑथर की क्या जरूरत है, ओके इसमें आगे पढ़ लेंगे। पहले डॉक्टर प्रिमरोज की फैमिली को समझते हैं, जो कि ये एक तरह का साइंटिफिक सिस्टम है, ओके उनकी फैमिली नहीं है, वो एक साइंटिफिक फैमिली है, ओके डॉक्टर प्रिमरोज फैमिली इज कॉल्ड अ साइंटिफिक फैमिली, जहाँ पर बहुत ही रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, सारे रिएक्शन इन्हीं की फैमिली में हो रहे हैं, और किसी फैमिली में इतने प्रॉब्लम्स नहीं है जितने प्रॉब्लम्स इनके फैमिली में है। डॉक्टर प्रिमरोज जो कि वहाँ के हेड है, मीन्स अपने पूरे फैमिली के गार्जियन है, ऑलराइट। साइंटिफिक सिस्टम। नाउ सोसाइटी एंड प्रॉब्लम्स आउटसाइड केमिकल, वी कैन से, ओके आउटसाइड केमिकल, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ओके कह सकते हैं बिल्कुल। रिजल्ट क्या निकला, हाउ स्ट्रॉन्ग वैल्यूज लाइक मोरालिटी, ऑनेस्टी एंड लव रिएक्ट अंडर प्रेशर। मीन्स कह सकते हैं एक तरह से डॉक्टर प्रिमरोज की जो फैमिली है, आसपास कितना एरिया जितनी सोसाइटी है उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी प्रॉब्लम इनकी फैमिली में है, ओके कहा था मैंने साइंटिफिक फैमिली है इनकी, प्रूव होगा अब। दिस इज कॉल्ड द प्रूव, ओके लास्ट में मैं कहूँगी हेंस इट इज प्रूव्ड दैट डॉक्टर प्रिमरोज फैमिली इज अ साइंटिफिक फैमिली, ओके साइंटिफिक सिस्टम। नाउ अबाउट ऑलिवर गोल्डस्मिथ, ही वॉज अ राइटर, बिल्कुल है, उन्होंने इतनी अच्छी साइंटिफिक, वैसे उन्हें राइटर नहीं, उन्हें साइंटिस्ट बनना चाहिए था, ओके साइंटिस्ट बनते तो शायद कुछ कर पाते, बट कोई बात नहीं, साइंटिफिक फैमिली लिखती उन्होंने एक राइटर बन के, ओके बहुत बड़ी बात है ये, साइंटिस्ट से कम नहीं है ये। पोएट एंड डॉक्टर, ओके ओके डॉक्टर, ऑलराइट। ही लव्ड नेचर, of course family values, okay and simple village life, all right. His stories always a moral message, okay give a moral message. Let's see कैसे साइंटिफिक रीजन की वजह से एक मोरल मैसेज निकलता है, देखते हैं आगे। गोल्डस्मिथ अ साइंटिस्ट, वाह मैंने कहा ही था ये साइंटिस्ट है, देखो आ ही गया ना, मुझे पता था, आई एम प्रीटी श्योर दैट इन्हें एक साइंटिस्ट होना चाहिए यार। Oliver Goldsmith, a scientist who runs an experiment to prove that, wow, he runs an experiment to prove that honesty and family unity can survive acid test in society. Wow. Imagine a test tube. Let's imagine a test tube. Test tube में कह रही हूँ डॉक्टर प्रिमरोज की फैमिली को। And light is pouring different chemicals into it. Like, अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, pouring different chemicals, बहुत सारे केमिकल्स आ रहे हैं, मतलब कि फैमिली प्रॉब्लम्स आ रही है, ओके होता है ना टेस्ट ट्यूब में मैं अगर डाल रही हूँ बहुत सारे केमिकल, सो रिएक्शन तो होगा ही ना, वैसे ही टेस्ट ट्यूब क्या है, इनकी फैमिली है, ओके डॉक्टर प्रिमरोज की फैमिली है, जहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स मैं डाल रही हूँ उस टेस्ट ट्यूब में, मीन्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनकी फैमिली में आ रही हैं। किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है, लाइक फैमिली लूजेज मनी, कह सकते हैं हीट अप्लाइड टू मदर, ओके मदर पे हीट अप्लाइड हो गया, टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ हो रहा है उनका। ओलिविया रन्स अवे, ओलिविया भाग जाती है। इलेक्ट्रिक शॉक, अनस्टेबल कंडीशन लगता है इनको, ओके टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक वी कैन से। डॉक्टर प्रिमरोज गोज टू जेल, ये जेल भी चले जाते हैं। कोल्ड टेम्परेचर फ्रीजेज रिएक्शन, ओके कोल्ड टेम्परेचर फ्रीजेज रिएक्शन। फैमिली रीयूनाइटेड, लास्ट में इनकी फैमिली का रीयूनाइटेड हो जाता है, मीन्स अब रीयूनाइटेड तो होगी, वो तो हर एक सीरियल की एंडिंग होती है, टीवी सीरियल की भी एंडिंग होती है, हैप्पी एंडिंग, सो हैप्पी एंडिंग इनकी भी होनी ही थी, पता ही था लास्ट में ये रीयूनाइटेड होने वाली है, ओके इतना सबको सिखाने की जरूरत ही नहीं थी। वैसे कैटलिस्ट एडेड ब्रिंग्स बैक बैलेंस, दैट्स ऑल अबाउट इट। कंक्लूजन इसका ये निकला दैट इवन आफ्टर स्ट्रेस, इतने स्ट्रेस के बाद, इतने स्ट्रगल के बाद फैमिली बॉन्ड रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, उनकी जो फैमिली बॉन्ड है ना वो अभी भी स्ट्रॉन्ग ही रही है, जस्ट लाइक अ मॉलिक्यूल हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, ओके अब ये मत पूछना मॉलिक्यूल क्या होता है, अभी बताया था, अ ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, ओके और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ओके सो जैसे मॉलिक्यूल मीन्स क्या, उनकी फैमिली के सदस्य, ओके
and atom is like their emotions, molecule is like their family members. सब आपस में मिल गए मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड बन गया इनकी फैमिली में, फैमिली बॉन्ड बन गया, दैट्स ऑल। हो गई इनकी भी हैप्पी एंडिंग, मॉलिक्यूल बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, फिर मेरा ये वाटर बॉटल बन गया, देखो कितना अच्छा बनाया है। मीन्स ये क्या हो गई, ये एक फैमिली बॉन्डिंग बन गई, ओके। और फिर उनकी एक हैप्पी लाइफ क्रिएट हो गई और मेरा ये पानी का बॉटल क्रिएट हो गया, ओके। एटम से, मॉलिक्यूल से कोवेलेंट बॉन्ड बना, उसके बाद से मेरा ये वाटर बॉटल क्रिएट हो गया। वेट, टेस्ट करना चाहिए। अमेजिंग, इट्स वर्किंग, साइंटिफिक रीजन वर्क हो रहा है, मीन्स डॉक्टर प्रिम्रोज की फैमिली पर भी ये वर्क हुआ। ऑलराइट, थीम्स देख लेते हैं एक बार साइंटिफिक फॉर्म में। मोरालिटी, ऑनेस्टी इवन अंडर प्रेशर, लाइक प्योर गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद एसेंस इजली, ओके। डॉक्टर प्रिमरोज गोल्ड स्टैंडर्ड मैन, वैसे इनके पूरे खानदान में, इनके पूरे फुल फैमिली में ना एक यही मुझे सबसे समझदार लगा, डॉक्टर प्रिमरोज, जो कि उस फैमिली के हेड मेंबर है, ओके। फैमिली यूनिटी, उनका रीयूनाइटेड, ओके। रीयूनिटी कैसे हुआ ये देखो। वैसे यहाँ पर रीगार्नेशन भी हुआ है, फैमिली का पुनर्जन्म भी हुआ है इनके, ओके। बहुत सारे लोग गुम हो गए थे, वापस आ गए थे, एक तरह से पुनर्जन्म हुआ, बिकॉज बिना किसी पुनर्जन्म के कोई सीरियल कंप्लीट नहीं होता, ये कैसे कंप्लीट होता, ओके। नाउ फैमिली यूनिटी में क्या दिखाया है, ये दिखाया है कि स्टे टुगेदर इन ऑल कंडीशंस, हर कंडीशन में सब साथ रहे। लाइक डीएनए स्ट्रैंड ट्रस्टेड बट नेवर ब्रेक, कहते हैं ना डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो मतलब रिपोर्ट तो सेम रहेगा, कभी ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं, ओके। प्रिमरोज फैमिली टाइटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल सेम एज, अगर मैं इस वाटर बॉटल को ब्रेक करूंगी तो इसके टुकड़े टुकड़े होंगे लेकिन सब एक साथ ही रहेंगे, ओके। सफरिंग एंड ग्रोथ, थर्ड नंबर, प्रॉब्लम्स मेक यू स्ट्रॉन्ग, लाइक कार्बन एंड वी कैन से टर्न इनटू डायमंड प्रेशर। प्रॉब्लम्स, आपको जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी ना वो सारी प्रॉब्लम्स आपको और स्ट्रॉन्ग बनाती है, ओके। ये तो एक टीवी सीरियल का डायलॉग है, ओके। एक बहुत ही अच्छा सीरियल है स्टार प्लस का, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओके। उसमें एक डायलॉग आया था कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, उसमें वहाँ की जो एक तरह से हम कहते हैं मेन एक्ट्रेस, मेन लीडर ने, अक्षरा थी उस टाइम, उन्होंने ये डायलॉग कहा था कि जितनी प्रॉब्लम्स हमारे घर में आएंगी वो हमारे फैमिली को ना और स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। सेम वही डायलॉग इसमें यूज़ है कि डॉक्टर प्रिमरोज की फैमिली में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम सबको और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, ओके। वैसा ही हुआ, कहते हैं कार्बन टर्न इनटू डायमंड अंडर प्रेशर, ओके। कार्बन के ऊपर जब प्रेशर आया ना तो वो डायमंड बदल गया, हीरा में बदल गया कार्बन, ओके। प्रिमरोज इज इक्वल्स टू डायमंड सोल, कह सकते हैं प्रिमरोज के पास हीरे की आत्मा डायमंड सोल है, ओके। डायलॉग है, कैसा होता नहीं है। फोर्थ नंबर है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, नॉट ऑल दैट साइंस इज गोल्ड। कहते हैं ना हर चमकता हुआ सोना सोना नहीं होता, मतलब गोल्ड, हर चमकता सोना सोना नहीं होता, ओके। रियलिटी में गोल्ड नहीं होता है, मानते हैं वो साइन हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गोल्ड है, उसको पहले टेस्ट करवाओ कि वो रियलिटी में गोल्ड है भी या नहीं, ओके। मतलब साइन तो अगर हम मोबाइल की टॉर्च जला भी दें, लाइट फ्लैश लाइट ऑन करेंगे तब भी शाइन करेगा, इसका मतलब वो ये नहीं ना कि वो डायमंड बन गया। लाइक मिरेज इन डेजर्ट लुक्स लाइक वाटर, पानी की तरह दिखता तो है लेकिन वो पानी होता नहीं है, ओके, बट इट्स नॉट, पॉइजन होता है। मिस्टर थॉर्नेल, बिल्कुल मिस्टर थॉर्नेल की तरह। अ बैड पर्सन लाइक एन ऑप्टिकल इल्यूजन, स्टार्टिंग में एंट्री उनकी होती है, बैड पर्सन है लेकिन उनको कोई पहचान नहीं पाया, ऑप्टिकल इल्यूजन में थे, अच्छे हैं बुरे, अच्छे हैं बुरे, लास्ट में सामने आया या ये तो बुरे हैं, ओके। दैट्स ऑल अबाउट इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फेथ एंड रिलीजन, ट्रस्ट इन गॉड, भगवान पे भरोसा, इवन इन पेन, दर्द में हो लेकिन भगवान पे भरोसा तुम्हें टूटना चाहिए, दैट्स ऑल अबाउट इट। लाइक ग्रेविटी इज विजिबल बट ऑलवेज वर्किंग, कहते हैं ना ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो कभी दिखाई नहीं देता लेकिन हमेशा काम करता है, राइट। अगर मैं इस वाटर बॉटल को ऊपर ऐसे उछालूंगी तो ये नीचे ही आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे ही खींचेगा, ओके। दिखाई नहीं दे रहा लेकिन काम कर रहा है, इट्स वर्किंग। दैट्स ऑल अबाउट इट। सो दिस इज द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, यू लव दिस वीडियो। ईच एंड एवरी पॉइंट को मैंने साइंटिफिक वे में कवर किया है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर के ऊपर मैं नोट्स भी बना करके उसके ऊपर एक
डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी. ओके, मीन्स वी कैन से डिफरेंट लेसन. 3 वीडियोज़ और बनेंगे. फर्स्ट अलेक्जेंडर पोप के ऊपर, देन नेक्स्ट नंबर कौन है, या जॉनसन स्मिथ के ऊपर, एंड नंबर 3 इज ऑलिवर गोल्ड स्मिथ के ऊपर. ओके, वैसे जॉनसन स्मिथ का लास्ट नंबर याद रखना, तांत्रिक मंत्र. ओके, हुन हिन यंग मंस, whatever it is. That's all about it. Take care. Bye bye.